Hello, my dear students. Welcome once again to our online classes. In our previous class, we have started the chapter Balance in Nature, and we have already discussed about the biotic component and abiotic components of the environment and the dependence of animals, plants, and human beings on abiotic component, and also discuss about food chain and natural balance. Today, in this class, we are going to discuss about the topic that is how does the balance get disturbed. So, students, in our previous class we have already discussed about the natural balance, how naturally balance occur. Let us discuss how does the balance get disturbed. So balance get disturbed due to so many reasons. The main reason that is population growth and environmental pollution, hunting and killing of animals, and excess use of insecticide and pesticides. So let's start from the first point, that is population growth. As population increase beyond limits, it becomes more and more difficult to meet the need of food, clothing, and shelter. More and more agricultural lands get used for construction. This causes extinction of wild animals and many varieties of plants. Therefore, it disturbs the food chain and ultimately affect the balance in nature. So, students, क्योंकि आजकल जो कि है पॉपुलेशन इतने जो कि लिमिट से भी ज़्यादा बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से जो कि इतने सारे पॉपुलेशन को उनके जो कि डे टू डे लाइफ का नीड जो है फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, ये सब प्रोवाइड करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से ज़्यादा जो कि है एग्रीकल्चरल लैंड फॉर फूड प्रोडक्शन के लिए चाहिए, जिसके वजह से जो कि है ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को कट किया जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स एक्सटिंक्शन हो जाते हैं। मतलब उनका बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स जो कि है एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, दुनिया में देखने के लिए आजकल मिल नहीं रहे हैं, और बहुत सारे वेराइटीज ऑफ प्लांट भी नहीं मिल रहे। सो इसकी वजह से क्या होता है फूड चेन में डिस्टर्बेंस होता है, जिसमें कि बैलेंस इन नेचर में भी उसका इफेक्ट आता है। Leopard enters village homes, elephant run into shops. Why do wild animals enter to village and towns? Because man has cut down forest to build house for himself. आजकल जो कि लियोपर्ड विलेज के अंदर घुस रहे हैं, एलिफेंट्स भी जो कि है शॉप के अंदर घुस रहे हैं, वाइल्ड एनिमल्स जो कि है विलेज के अंदर आ रहे हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो कि है फॉरेस्ट को कट करता है अपने घर बनाने के लिए, जो कि वाइल्ड एनिमल का घर होता है, तो वो लोग विलेज के तरफ दौड़ के आते हैं। तो इसके पीछे रीज़न जो कि है कट डाउन ऑफ फॉरेस्ट, और जिसके पीछे जो कि ह्यूमन बीइंग जो कि है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। The smoke released from industries and vehicles pollute the air. It causes numerous diseases in human beings. Plant and animals also get affected. This release toxic substance into air, water, and lands affect the health of all living beings. So environmental pollution जो कि पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा इंडस्ट्रीज हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स चल रहे हैं, जिसमें से कि जो एयर निकलता है वो जो कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है, और जिसकी वजह से बहुत सारे डिजीज़ ह्यूमन बीइंग में हो जाता है। प्लांट्स और एनिमल्स भी इसमें अफेक्टेड होते हैं, और इसमें जो कि बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस निकलते हैं जो कि एयर में मिक्स हो जाता है, वाटर में मिक्स हो जाता है, लैंड में भी मिक्स हो जाता है, जिसमें कि हमारे सारे लिविंग थिंग के ऊपर उसका बैड इफेक्ट आता है। Now come to the next point, that is hunting and killing. Men depended on animals right from the Stone Age. Even today, animals are being hunted and killed either for pleasure or for making items for their body parts. Due to this, many species of wild animals that once existed on the earth have become extinct. जो कि है ह्यूमन बीइंग एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं पुराने ज़माने से, स्टोन एज के टाइम से भी वो लोग ह्यूमन बीइंग जो कि है एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं। आजकल भी ह्यूमन बीइंग के ऊपर जो ह्यूमन बीइंग जो कि है एनिमल को हंटेड करते हैं, उनको किल करते हैं,
आइदर उनके प्लेजर के लिए, उनकी खुशी के लिए, और मेकिंग आइटम्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट, उनके बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट आइटम्स बनते हैं। जैसे कि तुम लोग प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़े हो, ये जो कि है एनिमल को हम यूज़ करते हैं, उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को यूज़ करके उसमें से बहुत सारे आइटम्स बनते हैं जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, मैनी स्पेसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स दैट वंस एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ हैव बिकम्स एक्सटिंक्ट। तो ह्यूमन बींग जो कि उनके ये काम की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एनिमल्स जो कि है पहले जो कि है अर्थ में थे, लेकिन आजकल वो कि एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, मतलब वेनिस, टोटली वेनिस हो गए हैं। यहाँ पर कुछ जो कि है बॉक्स के अंदर जो दिया है, डू यू नो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हैव यू एवर कम अक्रॉस द पिंक हेडेड डॉग, माउंटेन क्वेल, डोडो, स्नो लियोपार्ड इन ए जू? यू विल नॉट एबल टू फाइंड देम बिकॉज दे आर ऑल एक्सटिंक्ट। देयर इज नॉट वन ऑफ देम दैट एग्जिस्ट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये जो पिंक हेडेड डॉग, माउंटेन क्वेल, डोडो, स्नो लियोपार्ड, ये आजकल कहाँ पर भी कोई भी जू में जाओगे तो तुम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो एनिमल्स पहले थे, लेकिन ह्यूमन बींग के इस एक्टिविटी के वजह से क्या हुआ, आजकल ये टोटली एक्सटिंक्ट हो गए। एक्सटिंक्ट मीन्स ऑलरेडी वेनिश हो गया है। ये सारे जो कि पिंक हेडेड डॉग, माउंटेन क्वेल, डोडो, लियोपार्ड, इनका एक भी स्पेसीज अर्थ में अभी अवेलेबल नहीं है। एक्सटिंक्ट मीन्स टोटली वेनिश हो चुका है। Now come to the next point, that is insecticides and pesticides. Farmer use insecticide and pesticide to kill insect and pest. These chemicals not only destroy pest but also the birds and frogs that naturally eat these insect. Insecticide enter crops through roots. When human eat these crops, insecticide enter their bodies and make them sick. So insecticide और pesticides जो कि है फार्मर्स उसको यूज़ करते हैं टू किल इंसेक्ट एंड पेस्ट। ये केमिकल जो कि है पेस्ट को मारते हैं, बट पेस्ट को तो मार डालते हैं, लेकिन ये जो कि है बर्ड, फ्रॉग, इन लोगों के ऊपर उसका बैड इफेक्ट होता है। कैसे? जो कि जो पेस्ट, ये पेस्टिसाइड को खा के मर जाते हैं, उस पेस्ट को जो बर्ड खाते हैं तो इनडायरेक्टली वो पेस्टिसाइड उनके बॉडी में चला जाता है, जिसका बैड इफेक्ट उस बर्ड के ऊपर आ जाता है। इंसेक्टिसाइड जब प्लांट में दिया जाता है तो वो ज़मीन के ऊपर गिरता है और वो रूट के थ्रू प्लांट के अंदर भी चला जाता है, और ह्यूमन बींग जब वो क्रॉप में आ जाते हैं, उसको जब हम कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे बॉडी में भी जो कि है कुछ बीमारियां फैलाता है। सो नेक्स्ट, सेफगार्डिंग बैलेंस इन नेचर। सेफगार्ड मीन्स ए मेजर टेकन टू प्रोटेक्ट समवन और टू प्रिवेंट समथिंग। मतलब सेफगार्डिंग बैलेंस इन नेचर मतलब बैलेंस इन नेचर में जो डिस्टर्बेंस हो रहा है उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, क्या क्या स्टेप लेने से वो प्रोटेक्ट हो सकता है। नंबर 1, मेंटेन फॉरेस्ट एंड डू नॉट कट ट्रीज। वेस्टलैंड शुड बी कन्वर्टेड इनटू फॉरेस्ट लैंड बाय प्लांटिंग ट्रीज। जैसे कि पहला रीजन हम पढ़े थे, ट्री कट करने से बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स का घर जो कि है वेनिश हो जाता है, जिसकी वजह से वो गांव में आ जाते हैं। तो ये कटिंग डाउन ट्री को हम बंद करेंगे और प्लांटेशन ऑफ ट्री करेंगे। नंबर 2, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड शुड नॉट बी यूज्ड इन एक्सेस। हम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड को यूज़ करेंगे बट लिमिटेड क्वांटिटी में हम यूज़ करेंगे। डू नॉट थ्रो वेस्ट मटेरियल इनडिस्क्रिमिनेटली, दे कैन बी रीयूज्ड। वेस्ट मटेरियल को हम इधर उधर बिना सोचे समझे नहीं फेंकेंगे, उसको हम जितना भी हो सकता है उसको रीयूज़ करने की कोशिश करेंगे। क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाएंगे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। हंटिंग एंड किलिंग एनिमल्स शुड बी बैंड। तो एनिमल्स का जो कि हंटिंग और किलिंग कर रहे हैं हम, जो भी वजह से भी हम हंटिंग कर रहे हैं या किलिंग कर रहे हैं, उसको बैन किया जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेफ गार्डिंग बैलेंस इन नेचर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर तुम लोगों को कुछ न्यू वर्ड्स दिया गया है, तो तुम लोग इस वर्ड को अपने कॉपी में 5 टाइम्स लिखोगे। फर्स्ट वन दैट इज एनवायरनमेंट, सेकेंड वन एबायोटिक कंपोनेंट्स, थर्ड वन बायोटिक कंपोनेंट्स,
fourth energy flow, fifth food web, sixth insecticide, 7 pesticide, 8 population, 9 autotrophs, 10 photosynthesis. So this is all about today. We will discuss about the exercise in our next class. Thank you.